کراچی میں واقع اس گھر کی کہانی بھی کچھ عجیب ہے۔ 14 اور 15 سال کے دو بھائی وقاص اور اویس چھٹی کے روز گھر سے نکلے اور بس پھر اس کے بعد آج تک واپس نہیں آئے۔ کوئی نہیں جانتا کہ انہیں آسمان کھا گیا یا پھر زمین نگل گئی۔ انتہائی سمجھدار اور پڑھنے لکھنے میں ذہین یہ دونوں بھائی اس گھر کی آسوں اور امیدوں کا محور تھے۔ صبح 8:30 بجے گھر سے کھیلنے گئے تھے، کہہ کے گئے ہیں کہ ہم کھیل کے آ رہے ہیں، اس کے بعد آئے ہی نہیں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ان کو؟ یہ 1 سال 9 مہینے ہو گئے۔ جب سوتے ہیں یہ اکیلا سوتا ہے، چھوٹا والا، تینوں بھائی سوتے تھے۔ جب اکیلا سوتا ہے، جب خیال آتا ہے، جب اسکول جاتا ہے یہ اکیلا، مدرسے جاتا ہے، کھانا کھانے بیٹھتا ہے اکیلا بیٹھتا ہے، جب جاتا ہے۔ ہر جگہ ڈھونڈا ہے اپنے بچوں کو؟ میں نے تو پیدل گھوم کے نا، پیدل چل کے کراچی کا 10 میل تک، روڈوں پہ، گلیوں میں، سب جگہ پہ ڈھونڈا ہوں۔ کہیں مل جائے، کہیں مل جائے، کہیں پتہ چل جائے۔ آس ہے آج بھی؟ آس پہ تو دنیا قائم میں، ہم بھی آس پہ امید رکھی ہے کہ آپ کے تو دست و بازو تھے نا، جس طرح بتا رہی ہیں آپ کے میرے برابر ہو رہے۔ میں تو جوان ہو رہا تھا، میں بوڑھا نہیں اپنے آپ کو سمجھتا تھا، میں بولتا تھا میں جوان ہوں، میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں میرے بچے۔ تو اب تو میرا یہ سوچتا ہوں میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ کیا بات سب میں زیادہ یاد آتی ہے؟ اتنا ڈانٹتی تھی، میرے بھائیوں نے آج تک میرے آگے نہیں بولے تھے ایک دفعہ بھی۔ کیا دعا کرتی ہیں؟ میں تو بس یہی دعا ہے جلد سے جلد صحیح سلامت گھر پہ آ جائے۔ نکالتی رہتی ہوں اکثر، کبھی کتاب نکال لی ان کی اردو کی، وہ پڑھنے بیٹھ جاتی ہوں، کبھی انگلش کی کاپیاں چیک کرتی رہتی ہوں کہیں کچھ لکھا ہو، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا انہوں نے، بس اسکول کا کام سارا۔ ماؤں کو بچوں کی لاش بھی مل جائے تو کچھ دن رو دھو کر صبر آ ہی جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں کیا کیا جائے جب ماں ہر وقت یہ سوچتی رہے کہ پتہ نہیں میرے جگر کے گوشے زندہ ہوں گے یا مارے گئے، پتہ نہیں میرے لال جیسے بیٹوں نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، پتہ نہیں میرے دل کے ٹکڑوں پر کوئی کتنا تشدد کرتا ہوگا۔ ایسے ہزار سوال اور جواب کوئی نہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارے اسٹوڈیوز میں جتنے ہماری آڈینس ہے، یہ غم ہم اور آپ اس کے بارے میں بات تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم ایسے محسوس کریں جیسے ان 2 بچوں کی ماں محسوس کر رہی ہے، جیسے ان کا باپ محسوس کر رہا ہے، یہ ممکن نہیں۔ لیکن دنیا میں ہم آئے کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا، یا رسول اللہ میں بہترین انسان بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگوں کو نفع پہنچاؤ، اللہ تمہیں بہترین انسان بنا دے گا۔ ہاں؟ آج ہم اس نیکی کے سیگمنٹ میں آپ سے پیسے مانگنے نہیں آئے، ہم آپ سے ایک ایسا دل مانگنے آئے ہیں جس میں وہ درد ہو جو وہ درد محسوس کرے جو یہ ماں باپ محسوس کر رہے ہیں، جو یہ شہزادی محسوس کر رہی ہے، یہ ان دونوں بھائیوں کی بہن ہے۔ ابھی مجھے بتا رہی تھی کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب رو رو کے میں ان کو یاد نہیں کرتی۔ ابھی میرے پاس کھڑی تھی، میرے سے پوچھ رہی تھی میرے بھائی مل جائیں گے نا؟ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے اور دل میں اللہ سے دعا کی اور کہا، اے اللہ اس کے بھائی ملا دے، اور کہا ہاں انشاءاللہ تجھے تیرے بھائی مل جائیں گے۔ آؤ بچے،
जी इकरार। जब भाई हमने जब ये सोचा कि ये इनको लाना चाहिए टेलीविज़न के ऊपर, तो एक अजीब फैसला था ज़ाहिर इस तर्ज के प्रोग्राम इससे पहले नेकी की तर्ज के सेगमेंट्स में नहीं, लेकिन इससे बड़ी नेकी नहीं हो सकती। अल्लाह करे मैं, अब यकीन जानिए मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, कल की बच्ची का इलाज था और मुझे लगता है ये भी और आने वाले दिनों में भी कुछ फैमिलीज़ हम लेके आएंगे ऐसी कि किसी एक का लख्ते जिगर, किसी एक का नूर नज़र उसके घर में हम उससे मिलवा दें जिसका कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। और ये हम नहीं कर सकते, ये लोगों को करना होगा। अपने इर्द गिर्द वो जिन लोगों को देखते हैं, कहीं इन बच्चों को देखा हो, कहीं कुछ अंदाज़ा हो कि ये बच्चे हो सकता है मौजूद हों, तो हमें ज़रूर इत्तला दें और हमारे नंबर्स टेलीफोन के ऊपर मौजूद हैं। जिस दिन उन दो भाइयों को हम उनकी बहन से मिलवा देंगे इंशाल्लाह और माँ से मिलवा देंगे, मैं समझता हूँ इससे बड़ी नेकी इस रुए ज़मीन पर नहीं हो सकती। तो बहन आपने पुलिस में इत्तला दी? पुलिस में इत्तला दी थी? ये जरा माइक में बात करिएगा, पुलिस में माइक करीब करें माइक अपने। जी पुलिस में इत्तला दी थी? जी। तो पुलिस वालों ने क्या बोला, क्या जवाब दिया आपको? जब बच्चे गुम हुए थे 9/22 को गुम हुए थे, 9/25 को दरखास्त दी थी थाने में। अच्छा। अबू को भेजा था। हाँ। वो उसको गाली वाली बक के तो भेज दिया था इसके अबू को घर पे। फिर 5 ही महीने बैठ गए घर पे मुल्ला मौलवियों के चक्कर में, जहाँ कोई बता रहा था वहीं जा रही हूँ, जहाँ कोई बता रहा है वहीं जा रही हूँ। मौलवी पैसे मांगते थे वो भी देती थी, लोगों से कर्जा उठा के कि मेरे बच्चे मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें दे दूंगी पैसे। अच्छा। नहीं कोई पता चला। फिर हाई कोर्ट में केस करा मैंने, वहाँ से आर्डर गया, जब पुलिस ने FIR काटी, अभी भी कुछ भी नहीं, धमकियाँ दे रहे हैं, बस मुझे तो कुछ भी आसरा नहीं हो रहा। हर जगह पे तलाश कर लिया मैंने, जीती सेंटरों में, पुरतखानों में, हॉस्पिटलों में, अकेली जाती हूँ, अकेली आती हूँ मैं इकरार कल आपके बेटे को देख रहा था ना, इतना प्यारा, अल्लाह उसको नूर नज़र, आपका अल्लाह उसको नज़र बद से बचाए। मुझे अपना भी बेटा याद आ गया, 12 साल का, छोटा जो है, अब तो बाकी तो बड़े हो गए हैं, तो छोटा सा 12 साल का वो बच्चा। फिर वो भी कुछ दिन पहले, पहली रमज़ान को हमने वो जो हमारे पेशावर के बच्चे आए हुए थे, वो इतना प्यारा सा बच्चा इरफान, आप यकीन करो इरफान, अब आप यकीन करो, मैं अभी जब मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था ये जो चल रही थी, मैं ये सोच रहा था किसी एक बच्चा किसी का चला जाना, किसी के 2 बेटे, मेरी 2 बेटे की कैफियत के पता नहीं 2 बेटे हैं नहीं है। ये माँ रात में सोते हुए कि पता नहीं सोए होंगे, पता नहीं। और मैं ये जुमला हिलाने वाला कि एक माँ मुर्दा खानों में अपने बच्चे को ढूंढती रहे कि चलो लाश मिल जाए। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है ऐसा नहीं इंशाल्लाह नहीं। अच्छा इकरार भाई एक बात बताएं, हमारे यहाँ जो एक बदकिस्मती से जो एक हमारा जो वो एक निज़ाम है जिसमें बच्चों को पकड़ लेते हैं और उनको रेज़गारी करवाते हैं, कुछ ऐसा निज़ाम है कि चेक किया जाए कि खुदा ना करे अल्लाह ना करे ये बच्चे वहाँ कहीं ना हो, क्योंकि बच्चे जो घरों से बहुत दूर चले जाते हैं फिर वो ऐसी जगहों पर ऐसे सेंटर्स में चले जाते हैं। ये अली भाई चूंकि रोशनी हेल्पलाइन इनकी बच्चों की गुमशुदा बच्चों की तलाश अली भाई क्या अच्छा क्या इसमें वो है? शुक्रिया ARY का कि एक ऐसे हसास और ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को आपने इस अपने सेगमेंट में लिया। ये रोशनी हेल्पलाइन की शुरू से कोशिश है कि इस इशू को हम हाईलाइट करें, तो ये आपका शुक्रिया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे इसको लेकर आए। ना कि देखिए एज ग्रुप अगर हम देखें तो इनके जो बच्चे हैं 14 साल और 15 साल, ये बच्चे हम कहें तो रन अवे भी हो सकते हैं, लेकिन अब चूँकि इनके पीछे अगर हम कोई कॉज देखते हैं कि वो बच्चे जो माँ के बग़ैर अपने वालिदैन के बग़ैर रह ही नहीं सकते थे और इनका सहारा बनने के वादे करते थे, उन्हें लाजमी अब कोई ऐसा मसला हो गया है, या तो कोई ऐसा ग्रोह उठा के ले गया है जो उन बच्चों से हो सकता है कि कोई भीख मांगने का काम ले रहा हो, जी हाँ, हो सकता है उनको ट्रैफिक करके किसी दूसरे शहर मुंतकिल कर दिया गया हो, जी हाँ, ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। तो आज इस बाबरकत महीने की तवस्सुत से, आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से हो सकता है किसी की दुआ, इनकी अपील को लग जाए किसी को, हो सकता है इनके लखते जिगर जो जिनकी वजह से ये रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं, हो सकता है किसी की दुआ लग जाए। आज हम इस प्रोग्राम में इसलिए लेके आए कि इनकी बात सुनी जाए, इनकी अपील को सुना जाए। काम करो कि वो सामने देखो उस कैमरे को, वहाँ देखो, और वहाँ देखकर लोगों से कहो कि अगर तुम लोगों ने मेरे बच्चे देखे, मैं एक माँ हूँ,
हाँ, अगर तुमने मेरे बच्चों को देखा है तो मेरे बच्चों को वापस भेज दो। मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इतना संगदिल कोई नहीं होगा कि अगर उसके पास तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो आगे से उनको फिर भी अपने पास रखे। एक दफ़ा उस कैमरे को देख के बात करो। चलो, मैंने इसको पकड़वाया, तुम बात करो। चलो। ये मेरे जितने भी लोग बहन भाई हैं जो दुनिया में पाकिस्तान में जो भी कोई देख रहा है यार भाई का, ये कोई चैनल कोई भी देख रहा है जिसके ने मेरे ये बहस और बकास देखे हो कहीं पे भी, इनको बताओ तुम एक माँ हो। और मैं माँ हूँ, मैं बीमार रहती हूँ हर वक्त और इनकी तलाश में भेजती हूँ अल्लाह की आस उम्मीद पे कि मेरे बच्चे मिल जाएंगे मुझे, और मुझे अभी तक कोई अता पता नहीं है। और किसी की बहन भाई ने देखे हैं या किसी ने भी देखे हों कहीं पे भी या किसी के पास भी हों तो मेहरबानी करके ये मेरे बच्चे खुदा वास्ते करके मुझे वापस कोई दे दे, और इसमें अल्लाह भी राज़ी होगा, मेरा दिल भी दुआ देगा। तो मेहरबानी बहुत बहुत होगी जिसके पास भी मेरे बच्चे होंगे वैसे। अच्छा, ये बहन बहुत हसास है भाइयों के मामले में। हाँ जी, तेरा नाम क्या है? शहजादी। तू तो देखने में भी शहजादी लगती है। हाँ, आंसू क्यों निकल रहे हैं? थोड़ा चल तू बोल, तू अपने भाइयों को बोल कि तू इनका इंतजार कर रही है। बता उनको, बोल जल्दी आ जाएं वापस। अब इस वक्त तुम जहाँ कहीं पे भी हो जल्द से जल्द घर पे आ जाओ। हम बहुत उदास हो गए तुम्हारे बगैर, इतना याद करते हैं तुम्हें। जहाँ कहीं पे भी हो जल्द से जल्द आ जाओ। बोलो। क्या तुम्हें हमारी नहीं आती? क्या तुम हमारे पास आना नहीं चाहते? क्या हम तुम्हारे बहन भाई नहीं है? जल्दी घर पे आ जाओ। मेरे भाई और बहनों, आप जहाँ कहीं इन बच्चों पर नज़र पड़े आप एयरवाई स्टूडियोज़ मुतला फरमाइए। एहसान अजीम होगा आपका इस ख़ानदान पर, और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस पर जो अजर मिलेगा आपको वो आपकी नस्लों तक जाएगा। इन दोनों मासूम बच्चों को, आपके भी घर में बच्चे होंगे, ज़रा अपने छोटे से बेटे की एक दफ़ा शक्ल देखिए। एक दिन के लिए चला जाए वो कहीं, आपको बताए बगैर आपका क्या हाल हो। 1.25 साल से ये दोनों लखते जिगर अपनी, हाँ, पौने 2 साल हो गए हैं बहस और विकास को घर से गए हुए को। पौने 2 साल हो जी, गए। इस 22 तारीख को 1 साल 9 महीने हो जाएंगे। 1 साल 9 महीने हो गए हैं घर से गए हुए को। खेलने का बोल के गए हैं, सुबह 8:30 बजे, इतवार का दिन था, वापसी नहीं आए। जहाँ कहीं पे भी मेहरबानी होगी, हर कोई औलाद वाला है और जो मेरे बच्चे वापस दे देगा तो रोशनी हेल्पलाइन पे यार भाई पे कोई ढूंढ कर दे तो बहुत मेहरबानी होगी, आसान होगा। जब मेरे दिल को सुकून मिलेगा तो अल्लाह तुम्हें सुकून देगा। और ये बच्ची जब हम घर गए उनका यूनिफॉर्म चूम चूम के, आँखों को लगा लगा के, उनकी किताबें उनको देख देख के, उनके जूते जो स्कूल के थे, उनका जो यूनिफॉर्म था, वो याद करती रहती है। ज़ाहिर छोटी बहन का भी ये हाल है, माँ का भी यही हाल है। बाप बेचारा कहता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और इतने समझदार थे कि वो वादे करते थे कि मैं बहनों के जहेज़ का इंतज़ाम करूँगा। एक कहता था कि बाप को कि तुम बस अब थोड़े दिन की बात है, आराम करना और फिर मैं काम करूँगा। तो ऐसा भी नहीं है कि कहीं ऐसे लाइल थे बच्चे कि कहीं चले गए और पता नहीं कि कुछ अजीब हुआ है। समझदार बच्चे थे, इसीलिए शायद याद भी ज़्यादा आते हैं। बहनों के साथ जो ताल्लुक़ था, चीज़ें लेके आते थे। ईद से पूछें किस तरह से वो उसके साथ करते थे, मेरी जब बात हुई है। अच्छा, मेरे को यही बोलते थे कि मुझे अपना घर लेंगे ना तो पंजाब जाएंगे हम, नहीं तो नहीं जाना। खानदान वाले बोलेंगे कि इनका घर भी नहीं, किराएदार है।
अम्मी जी हम कमाएंगे पढ़ लिख के ना बड़े हो अच्छा। जाएंगे, तो तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहती, हम दवाई खुद लाए करेंगे, अपनी बहनों की शादियां करेंगे ना, अब जेवर भी बनाएंगे, गाड़ियाँ भी देंगे। अम्मी जी परेशान नहीं होया करो, अब मैं इतनी परेशान हूँ, अब पता ही नहीं है परेशान है कितनी। अम्मी रो रही है, कभी रोने नहीं दिया था मेरे बच्चों ने, खुद आंसू साफ करते थे। अम्मी जी नहीं रोया करो, तुम्हारे को अल्लाह भी ये सही कर देगा। अम्मी जी नहीं रोया करो तुम। अम्मी जी तुम्हें कुछ हो जाएगा, आपियों का क्या होगा अब पता ही नहीं आपियों का। मेरे बच्चे इतने लैक थे, कौन ले गया कौन नहीं ले गया, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से लेन देन नहीं है, किसी से आना जाना भी नहीं, अपने घर से रहते हैं हम तो। जिस किसी के पास भी है, मेरे से इतनी हिम्मत नहीं है, अब मैं पैदल चल चल के कहाँ जाऊँ, कर्जे में इतनी वो हो गई हूँ। मकान वाला भी बोलता मकान खाली कर दो, तुम्हारी तो इतनी देर हो गई है, बच्चे मिलने ही नहीं है, कहाँ से पैसे दोगे। बहन अल्लाह ने चाहा ना, अल्लाह ने चाहा तो पढ़ाइयों तुम्हें में भी वो फाल्ट हो रहे हैं बच्चों की, ये तुम्हारे पढ़ाइयों बच्चे में जरूर जा रही है। मिलेंगे। अजीज दोस्तों, एक बार फिर आपसे गुजारिश है, और एक बार फिर आपसे ये गुजारिश है। जी मेहरबानी हाँ। होएगी, बहुत बहुत अल्लाह भी राजी होगा। यार भाई वाले इतनी मेहनत कर रहे हैं, इनको मेहनत का सिला मिल आमीन, जाए, बच्चे इंशाअल्लाह। मिल जाए। रोशनी हेल्पलाइन वाले देर मेरे से साथ कॉलर बहुत भी है, मदद तो कर रहे अच्छा। कह रहे हैं। हैं एक कॉलर है, हमें लेकिन कॉलर जो है बहुत देर से हेल्पलाइन मेरे साथ मिल के मेरे बहन एक बच्चे मिनट ढूंढ रुकना, रहे हैं। एक फोन आया है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जुनैद बेटा, जी जी मैं इंग्लैंड यूके से बोल रही हूँ, बर्मिंघम से। जी जी मैंने तो अपने भाई और बहन को खोया है, बिल्कुल मतलब वो तो इस दुनिया से ही चले गए हैं, लेकिन चले कम से कम उनकी कब्रों पे जाके ये एहसास तो होता है कि वो यहाँ पे ही कहीं होंगे। अल्लाह इस मेरी बहन को जो है इसके बच्चे मिला दे, मेरी दिली दुआ इस रमजान शरीफ में। और वो आमीन। जो संगदिल लोग हैं जिनके दिलों में पत्थर है, बल्कि पत्थर भी टूट जाता है, वल्लाह आलम क्या उनके दिल में है, जिन्होंने वो बच्चे मासूम उठाए और इस माँ को दर्द दिया इतना ज्यादा, और इस बहन की आंखों में आंसू मैं सोच भी नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कि मैं क्या बयान करूं, मैं इनको किस तरह सब्र और सहारा दूं। अल्लाह आपको खुश रखे मेरी बहन। अल्लाह पाक इनको सब्र और सहारा दे। आमीन। अल्लाह पाक आमीन। एक दिन आमीन। अचानक ये दरवाजा खोले और इनके बच्चे मिल आमीन जाए। आमीन आमीन आमीन। अजीज दोस्तों, जाते जाते आपसे गुजारिश है, ये दो मासूम बच्चे कहीं नजर आए तो हमें जरूर इत्तला देना। इतना बड़ा सवाब है आपके लिए, इसके अंदर आपकी नस्लों की अल्लाह हिफाजत करेगा। ज़रूर नज़र रखना, ज़रूर नज़र रखना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है।